पी है वो हल्दी होती है या फिर आपकी चना दाल होती है, सो ये भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक राशि इसके लिए भी होता है कि हाँ आप ये राशि है तो आप उसके हिसाब से करो, बट अगेन एज आई सेड कई बार आपको कई रेमेडीज आपके चार्ट्स देख के ही बता सकते हैं। But this is again, this is a universal remedy, yes. Charity is the biggest remedy which you can do. कोई भी नीडी आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो फूड हो चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, आप उसकी हेल्प कर दीजिए, डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि इस टाइम पे उतने ज़्यादा डिसीजंस मत लो अभी, यू नॉट श्योर कि अभी तुम सही डिसीजन ले पाओगे कि। Welcome to Be Beyond Blissful. This is an episode to a very different one to what we have done in past. I am your host Richie. Today on our show we have Ishita with us. Ishita is a rising astrologer. She's been studying astrology from last 1 year. And I say studying because astrology is such a vast subject. ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर कोई 6 months या 8 months का कोर्स करके एस्ट्रोलॉजी का और वो एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं. I think astrology, just like any other science, is such a vast science that there is no end to it. You can keep on researching, you can keep on going, and Ishita is still very young. So we have Ishita on the show today, and she will be busting some myths, she will be shedding some light, and she will be telling us why astrology, and also she will be telling us that why she got interested in astrology being such a young generation. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल जो यंग जनरेशन है उनका एस्ट्रोलॉजी एंड एंशियंट इंडियन साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इशिता हियर with me on the show today. So please tune in till the end to hear about yourself, hear about your horoscope, your Rashi, and change in transits and whatnot. So let's welcome Ishita. Ishita, thank you so much for coming to Be Beyond Blissful. I must tell you, ये episode काफ़ी टाइम बाद हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा था लाइफ में, and I took a break. So thank you so much for coming and motivating me to do this again. Thank you so much for having me. It's such a pleasure and it's so good to speak to you about all these things. And I think it's such a good platform where we can actually share a lot about astrology, because this is such a booming thing and everyone's talking about astrology nowadays, because people have started actually knowing the real meaning behind astrology. And people are more interested in knowing the real astrologies, and rather than not talking about the myths, because we have so much, online, and we have so much flashy things about astrology on social media. So many people talk about remedies which do work, but there are so many things which do not work, and what not. So it is endless, as you said. And today I really want to put some light on astrology, and I want to help as much as I can. So that would be the theme for today's podcast from my end. आप बताओ वेयर आर यू स्टडिंग फ्रॉम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपने मुझे बताया है पहले ताकि, और गुरुजी इज़ अरुण पंडित जी. ही इज़ माई गुरुजी एज वेल. आई स्टडीड न्यूमरोलॉजी फ्रॉम हिम विच लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट, बट मैंने एक बार न्यूमरोलॉजी पढ़ा है उनसे, एंड ही इज़ रियली रियली गुड एंड वेरी जेन्युइन. तो एस्ट्रो अरुण पंडित के उनका चैनल है यूट्यूब पे, कई बार मैं देखती हूँ उनको. ही इज़ क्वाइट जेन्युइन. यस यस, he's very genuine. I think he is pretty young into this business, so he has that young blood in him. He has that enthusiasm. He has that, he has that thing in himself which motivates so many other students like myself. I never thought that I would come into this line, and I have always been a science student. So I always wanted to make my career in science, but this is something new for me as well. But Astro Arun Panditji, he really helped me and he motivated me. He is still motivating me. And the way he teaches, and just by making astrology so easy for us. I think that's the best thing about him.
that rather than teaching us, something which is very fancy, or rather than telling us the thing which we can't understand, he makes everything so easy for us. And I think that is his forte, and the way he teaches his students with the passion, with the energy, and every time he's there on time and with ready with all so many examples, and even like the examples that he shares, the way he talks, the way he describes and teaches us, I think it's incredible. Absolutely, I totally agree. He's very genuine also. So he will only answer if he knows. Certain times I've seen him that he will say, "Okay, I will have to find out," and he comes back to you later, which is so good. And yes, he's young. He's young in astrology, and he's young. Yes. So that's the thing. Or Ishita, आपने बोला you wanted to do science, but I think astrology is a science. It is a ancient Indian science. I mean, it works. There is science behind it, 100%. That's why I said you cannot stop astrology somewhere. जैसे science का कोई अंत नहीं है, astrology का भी कोई अंत नहीं है. I mean, astrology can tell you, मुझे ऐसा लगता है, you can probably tell, मैंने जितना सीखा है बहुत थोड़ा उतना मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी आपके बारे में सब कुछ बता सकती है. आपका हेल्थ, आपका आयुर्वेदा सिस्टम, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि आपके दोषास क्या हैं, वो भी जिस नक्षत्र जिस उसमें आप बॉर्न हुए हो राशि में, वो आपको वो सब बता सकते हैं. आपका हेल्थ, आपका करियर, बेसिकली इट कैन चार्ट आउट एवरीथिंग फॉर यू. And plus it also tells you that there is a free will in the end. Yes. तो it's like a road map है आपकी लाइफ का, बट उस रोड मैप के अंदर भी आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. So ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे कन्फाइंड हो जाओगे, उसी में ही ऑप्शंस हैं जिनको कई बार हम रेमेडीज भी बोलते हैं. तो लेट्स गेट इनटू, आप साइंस पढ़ना चाहते थे और मुझे पता है कि आप डॉक्टर्स के फैमिली से हो, योर फादर इज़ अ डॉक्टर. तो कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, आप इंटरेस्ट कैसे आया आपको इस एज में एस्ट्रोलॉजी में, जबकि आपका वर्क इज टोटली डिफरेंट? डेफिनेटली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रिची. टू बी ऑनेस्ट विद यू, डॉक्टर फैमिली से हूँ, तो डेफिनेटली एक हेल्पिंग नेचर, एक जेनरोसिटी बचपन से है. आई थिंक वो ब्लड में है. तो एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आई थिंक इट्स सच a positive thing that I am doing just by trying to help people. क्योंकि astrology science जैसे आपने बोला, definitely science, and it's also art. It's the creativity that an astrologer can do, because इतने सारे चीज़ें होती हैं astrologies में. I will say कि वो जो 12 हम बोलते हैं astrology में, which is 12 houses, 12 राशिस and 9 planets. तो वो जो 9 planets हैं जो हमारे घूम रहे हैं हमारी सर के ऊपर, मैं आप बोलना चाहूँगी, तो वो कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो कैसे आपको कब कौन सा प्लैनेट कैसे बिहेव कर रहा है, एंड हाउ आर यू बिहेविंग अकॉर्डिंगली. तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. एक साइंस और आर्ट जब मिलता है और एक क्रिएटिविटी फॉर्म होती है, एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आप उसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं एंड उसी चीज़ से आप लोगों की हेल्प करते हैं. सो हमेशा से आई वॉन्टेड टू गेट इन टू अ प्रोफेशन which can transform lives. And I think doctor does the same thing and an astrologer does the same thing. Exactly. So I think it's a win-win situation for me. Yes. So definitely I'm really happy to be into this for a year now, and I really want to continue. I'm still continuing. I'm working hard, and if my Guruji has his blessing, I will definitely progress, and one day I will become an amazing astrologer. I'm pretty sure. I have no doubts about it. Abhi se pehle jab aap mere husband ko, the way you were telling him about his, this being 1 year into this, telling him and answering all his questions, and he's spoken to different astrologers before, तो मुझे पता है. तो आपने किसी से ऐसा कोई कम जवाब नहीं दिया. और मेरा I'm talking, he's spoken to like really good astrologers. इंडिया के बड़े astrologers से उन्होंने बात की है कई बार. Just because not for any remedy or anything, it's just he's very curious. Yeah, so he just wants to know. Like I think most of us. Yes, exactly. I think astrology is definitely such a curious subject, and everyone wants to know about their future, past, or what's happening, what will happen. And I think that is something which sparks us as well. The enthusiasm which we actually see from our clients as well. If someone comes
एंड यू नो इफ़ ही इज़ नॉट इन दैट मूड, अगर कोई आए और ऐसे ही बैठ जाए बस बता दो मेरे बारे में, यू नो इवन यू वोंट फील, यू वोंट गेट दैट किक मे बी to actually help him. But if someone's coming and you know like who's actually interested, no matter, I know he might be in pain or he would be happy or whatever emotion he's having at that sort of time, बट अगर उसको आप अगर वो अपने इंटरेस्ट से सुन रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा उसको उसको एक्सप्लेन करना, प्रोडिक्ट करना, बिकॉज एज आई सेड बहुत अच्छा, इट्स सच अ नाइस थिंग टू प्रोडिक्ट समथिंग फॉर समवन, एंड इफ you know my remedies work and jab I get the positive feedback from my clients and I know that they have succeeded or they have achieved something which they were looking forward to, so could be I feel so happy, I get that peace and I can sleep peacefully that night. Of course. Absolutely. Totally agree. दोनों का involvement होगा तभी मज़ा आएगा. Yeah, no, just like yeah. So let's get into it. Abhi, you know, when we were talking about it earlier, you said you want to talk about the Jupiter transit that is coming. And I don't want to explain what transit is. I don't know if you want to, but I think क्योंकि I think जो लोग ये podcast देखे उनको शायद transit और दशा change का शायद थोड़ा बहुत पता होगा, but you can answer that in briefly. But the main topic over here is that as we can see, world is at the brink of World War III. Already दो major wars कितने सालों से चल रही हैं, पिछले 3 साल से. And then now, you know, we are seeing this India-Pakistan conflict, which is definitely escalating by the hour. But, you know, it's seriously a very serious situation out there. एंड जनरली भी बहुत रेस्टलेसनेस है. अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो, कोई अपने लीडर से हैप्पी नहीं है, यू नो, चाहे वो यूएस है, चाहे अब ऑस्ट्रेलिया में अभी इलेक्शंस होके ख़त्म हुए हैं, यू नो, ऑल्दो हमारी जो गवर्नमेंट आई है अभी इलेक्ट हुई है, नोबडी वाज हैप्पी विद इट. ये री इलेक्ट हो गए हैं, कोई हैप्पी नहीं था, बट ये इतना ज़्यादा वोट से जीते हैं. वी डोंट नो, पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट एंड पीपल स्टिल आर नॉट हैप्पी. तो इतना रेस्टलेसनेस चल रहा है वर्ल्ड में थ्रू आउट, विद इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. कोई अपनी लाइफ में भी, मुझे आजकल हार्डली कोई ऐसा मिलता है कि जो बहुत कंटेंट है, बहुत ही हैप्पी, बहुत पीसफुल, बड़ा यू नो उसका ऑरा बड़ा शाइन कर रहा है. नॉट दैट आई कैन सी पीपल्स ऑरा, बट आप जब किसी को मिलते हो तो पता चल जाता है, यू नो, बंदा कैसी एनर्जी लेके आपसे मिल रहा है. तो इन दैट टर्म, सो व्हाट डू यू वांट, पहले तो आप ट्रांजिट बता दो प्रिया कि ट्रांजिट क्या होता है, एंड what is this going to do, this Jupiter transit, and everybody's scared of it. ना पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी सारी ऑडियंस को कि स्केयर होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट इज़ समथिंग विच विल गिव यू ब्लेसिंग. जुपिटर जो होता है ना, अगर वो मार भी रहे हैं तो वो सोने के डंडे से मार, गुरु होते हैं. हाँ जी, वो गुरु होता है. तो ऐसा साइड सोने के डंडे से मार खा रहे हो, तो सोना की डंडा से मार खाना इतना वो नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. और गुरु जी आपको आपके भले की से डंडा पारे एग्जैक्टली, अगर वो मार भी रहे हैं तो आपको आपके भले के लिए डंडा मार रहे. तो इसलिए वो ट्रांसिट इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा. हाँ, थोड़ी राशियाँ हैं जिनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट मोर और लेस इट इज़ कमिंग फॉर योर बेटरमेंट ओनली. क्योंकि ये जो हमारी प्लैनेट्स भी हैं ना, ये हमें सब सिखाते ही हैं कुछ ना कुछ. हर प्लैनेट का अपना एक एट्रीब्यूट है, एंड वो क्यों है, क्योंकि वो हमें हमारी पर्सनालिटी वैसे बनाना चाहते हैं. हमारी प्लैनेट्स भी चाहते हैं कि हम यू नो अगर बारिश आ रही है तो हम बच सकें उससे, अगर लाइफ में कोई पेन है तो हम उससे बच सकें, हम स्ट्रॉन्ग रहें. या फिर कोई अगर आपकी लाइफ में कोई लव हो रहा है, रोमांस हो रहा है, सो वी हैव टू बी हैप्पी. सो वो इमोशंस, सारे प्लैनेट्स भी हमें इमोशंस देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं. सो आई थिंक एवरी प्लैनेट, एवरी दशा दैट कम्स, वो आपको कुछ सिखा के ही जाती है. एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई दैट दशा कम्स टू यू एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, पीरियड ऑफ लाइफ एक्चुअली. तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड वो हमें जो हम हैं वो बनाती है, एंड हमें वो स्ट्रॉन्ग ही बना रही है. सो स्केयर होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे सॉरी आपको इंटरप्ट करने, बट आई जस्ट फील कि मुझे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम शायद एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हैं. डेफिनेटली आई फील दैट, क्योंकि एक तो ऐसी साइंसेस निकल के आ रही हैं. मोर देन एवर, यू नो, पीपल आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स. मोर देन एवर पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल टॉक, स्पिरिचुअलिटी. तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमारे एक शब्द है जो स्टार्ट होता है दुख दान सुख रोग पया, विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू कि दुख जो है
वो आपका दाऊ मीन्स आपकी दवा दुख ही है, और दुख आएगा तो वो आपकी दवा बनेगा। हाँ जी। तब आप देखोगे अपने अंदर, और जो सुख होता है वो रोगों का कारण होता है, विच इज़ ट्रू। हम ज़्यादा खाते हैं हम रोगी होते हैं, हम जितना आराम करते हैं हम रोगी होते हैं, राइट। तो प्लीज कंटिन्यू। मेरा ये पेट से ये सब हमारे गुरु क्या की गए ना। एग्जैक्टली। अब आप जैसे वो टीवी में जो मॉनिटर आता ना, जब कोई हॉस्पिटल बेड में लेटा होता है, तो आप वो मॉनिटर को देखिएगा भी, जिसमें हार्ट बीट्स चल रही होती है, अगर ऊपर नीचे लाइन नहीं हो रही है तो इंसान में लग गया। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो आपकी लाइफ ऊपर नीचे तो होती ही है, दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़। कोई भी नहीं चाहेगा अरे बस खुश हैं, जिंदगी पेन नहीं बोर हो गए। पेन भी चाहिए होता है थोड़ा सा, एंड आई थिंक हमारे प्लैनेट्स हमें वो इसीलिए आते हैं उस टाइम पे कि नहीं अब थोड़ा ज़्यादा ही खुशियाँ हो गई है ज़िंदगी में, थोड़ा पेन देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम कंफर्ट हो जाते हैं। एंड आई थिंक एक बहुत ही ज़रूरी है, इट्स नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकली बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यू नो, यू फाइंड योर सेल्फ। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आप कंफर्ट जोन से whenever you move out, आप you get to know yourself better, I think, and it's always good for an individual basically. सॉरी हम थोड़ा ज़्यादा ही भटक गए टॉपिक से, यही प्लीज कंटिन्यू। बट ट्रांजिट में बस ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी छोटे से वे से कि होता क्या है, हर प्लानट अपनी राशि बदलता है। तो अब जुपिटर 12 ईयर्स के बाद अपनी राशि बदल रहे हैं और वो दूसरी राशि में आ रहे हैं। तो अब जुपिटर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हो रहा है जेमिनाई में। तो जुपिटर अभी तक टॉरस में थे, अभी भी हैं एक्चुअली टॉरस में, 15 मई को वो जेमिनाई राशि में जा रहे हैं। तो जब ट्रांसिट होता है तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, एंड वो कुछ कुछ राशियों के लिए अच्छा रहेगा। अभी जैसे जेमिनाई में जा रहे हैं, गुरुदेव की पूरी ब्लेसिंग अब जेमिनाइज के ऊपर आ रही है, तो जितने भी जेमिनाइज हैं दे विल फील द ब्लेसिंग। तो जेमिनाई जो हम क्या कहते हैं, ये अपना इंग्लिश कैलेंडर से जो जेमिनाई, वो वाले जेमिनाइज की हम बात कर रहे हैं, या जो आपकी कुंडली, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक कुंडली बनती है उसके अकॉर्डिंगली? ओके, सो बेसिकली ये एनर्जीज सभी लोग फील करेंगे थोड़ा थोड़ा, बट आज जो आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ मून साइन, जो कि हमारे वैदिक चार्ट्स में, जो हमारे हॉरोस्कोप में, जो हमारे चार्ट्स के हिसाब से हमारा साइन होता है। सो बेसिकली ये होता है, हॉरोस्कोप में हम मून साइन आते हैं, क्योंकि सन साइन इज समथिंग कि वो जो भी एक मंथ में बॉर्न हुए हैं सबको वही वाला सन साइन मिल जाता है, उसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं आती, अलग अलग नहीं होता। सब लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के तो नहीं हो सकते ना, अगर आप एक ही मंथ में बॉर्न हुआ है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, बट जहाँ आपका हम हॉरोस्कोप में आ जाते हैं। सो वेर एवर योर मून इज प्लेस्ड ऑन योर चार्ट, वो जिस राशि में प्लेस है दैट इज़ योर मून साइन। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक योर मून साइन एज वेल। जो जिनकी मून साइन जेमिनाई है उनको सबसे ज़्यादा ये पीर होगा। एग्जैक्टली। सो दे विल फील द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। अब गुरु आपके लिए इट्स नॉट कि आप हिंदुज़म को ही फॉलो करते हैं, आप सिखिज़म को या इस्लामिक हैं, क्रिश्चियनिटी या जो भी आपका रिलीजन है, आपके गुरु, आपके गॉड जो भी हैं, दे विल हेल्प यू, दे विल ब्लेस यू नाउ। एंड उससे क्या होगा, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, इतने टाइम से आपको फाइनेंशियली आप नहीं मतलब बैलेंस हो पा रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है किसी को बेबी का कोई इशू हो रहा है, यू नो पीपल कीप ऑन ट्राइंग हार्ड टू गेट अ बेबी, नहीं हो पा रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। क्या वो एक्चुअली दे विल गेट द पॉजिटिविटी दैट यू नो द स्पार्क इन देयर लाइफ, जो शायद इतने सालों से वो लोग ढूंढ रहे होंगे, या जो सैडनेस हो मे बी। सो फॉर जेमिनाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम, इट्स एन एक्सेलेंट टाइम कमिंग अप, कि हाँ अब वो एक्चुअली उनके लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आ रही है, गेम्स आ रहे हैं बेसिकली। बट मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ये बोलना चाहूँगी सारी जेमिनाइज के लिए, कि जुपिटर आ रहे हैं, जब जुपिटर आते हैं तो वो अपने साथ एक चीज़ लेकर आते हैं, वो है मोटापा। तो सारे जेमिनाइज को थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पेशली अपने खाने में, बिकॉज दे हैव टू ईट हेल्दी। और वो जैसे एक मूवी में था एक डायलॉग कि अदरक की तरह फैल रहे हैं, तो जेमिनाई वाले बस इस बार आप देख लेना अदरक की तरह फैलना ना पड़े। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद योर ईटिंग हैबिट्स फॉर दिस ईयर एटलीस्ट। मुझे आई डोंट थिंक मेरी मून साइन जेमिनाई है, बट मैं तो फिर भी अदरक की तरह पहनना शुरू होती। नहीं ना, आई कैन ऑलरेडी देन। नहीं, बट फॉर द जेमिनाइज ये एक छोटी सी टिप रहेगी मेरे साइड से, कि प्लीज़ अपने खाने पे ध्यान दीजिए, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज करिए थोड़ा सा, अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही एक्सरसाइज करिए, बट थोड़ा बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है इस साल के आपके में।
बाकी सब अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हेल्थ। एंड खाना ऐसे आएगा, लगेगा ल्योरिक होगा, अरे यार ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी ट्राई करके देखते हैं, वो भी खा के देखते हैं, बट आई वुड सजेस्ट डू हेल्दी ईटिंग जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। So that is important. And as you were talking about, the stress, the war and everything जो इतना ज़्यादा वर्ल्ड में चल रहा है, it is because अभी जो planetary positions ही ऐसे आए हुए हैं। अभी आप देखेंगे, अगर हम चार्ट्स देखें या किसी का भी कुछ देखें, तो अभी फ़िलहाल पाइसेस मून साइन में अभी हमारे बहुत सारे खान हैं, 6 आई थिंक 6 अभी थे कुछ टाइम तक, लेकिन बिकॉज अभी थोड़ा ट्रांजिशन भी हो गया कुछ कुछ प्लैनेट्स का। मर्क्यूरी ट्रांजिट होकर एरीज में आ गया है, सन मंथली ट्रांजिशन हो जाता है, तो वो दूसरी राशि में चले गए। लेकिन अभी भी राहु और शनिदेव और राहु जो हैं वो वही हैं। इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे होंगे, एंड बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में भी, स्लीप नहीं हो पाई होगी ज़्यादा, एंड ओवरऑल बिकॉज हर किसी की हॉरोस्कोप में कहीं तो 12 साइन है, तो वो हर किसी का अफेक्टेड। एंड आई थिंक वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब लोग इसीलिए इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि वो साइन अभी प्लानिटरी पोजिशंस ही ऐसे बन गए कि वो यू कांट हेल्प इट। और जब राहु और शनि दोनों साथ साथ आ गए, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली मैलिफिक प्लैनेट्स, एंड जब वो दो मैलिफिक प्लैनेट्स साथ में आ गए, तो यू नो हाउ कियोटिक इट कैन बी। सो दैट इज़ द थिंग। तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सभी के लिए चल रहा है। कोई, आई थिंक इवन आई हैवंट मेट लास्ट मंथ से कोई जो हुज यू नो वेरी हैप्पी और टॉकिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट एनीथिंग। सो आई थिंक इट्स जस्ट द टाइम विच इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि इस टाइम पे उतने ज़्यादा डिसीजंस मत लो अभी, यू नॉट श्योर कि अभी तुम सही डिसीजन ले पाओगे कि, so it's always best to wait. But अभी एंड ऑफ मे, बिकॉज राहु केतु दे आर मूविंग 18 महीनों बाद उनका भी वो हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। दैट्स वाई दिस ईयर इज, इट्स अ बिग ईयर इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज वेल, क्योंकि शनिदेव मूव हुए थे मार्च में। उन्होंने एक्वेरियस से वो पाइसेस में आए हैं। उसके बाद कैप्रिकॉर्न वालों की 7.5 ख़त्म हुई है, तो दे आर रिलीव्ड नाउ, दे आर इन हैप्पीनेस उसमें चले, हाँ वो नेक्स्ट राशि में आ गए, तो वो पाइसेंस पे आ गए, तो एरीज की स्टार्ट हो गई है 7.5 फिलहाल। एंड यह है कि अभी राहु तो वहीं बैठे हैं, अभी राहु केतु अब एंड ऑफ, नॉट एंड बट 18 मई के अराउंड मूव करेंगे। एंड जुपिटर तो हर साल मूव करते हैं, तो जुपिटर भी मूव कर रहे हैं। सो इट्स अ ईयर ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। 4 बड़े बड़े प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं राशि, तो इसलिए ये साल बहुत ज़्यादा निकाला था। राहु केतु की मूवमेंट का क्या होगा? मतलब अब जैसे आप कह रहे हो एंड ऑफ द मंथ दे बोथ आर गोइंग टू मूव एज वेल, बिकॉज दो शैडो प्लैनेट्स है तो वो साथ ही चलते हैं, राइट। तो उनके मूवमेंट से क्या मतलब? अब वही हर प्लैनेट जैसे मूव होता है, जैसे अभी हम जुपिटर की बात कर रहे थे, तो हर प्लैनेट जब भी मूव करता है तो वो हर मून साइन में एक अलग इफेक्ट होता है। किसी के लिए पॉजिटिविटी होगी, किसी के लिए नेगेटिविटी, डिपेंडिंग का दो एग्जैक्टली तो कौन से साइन में है वो, राइट से बॉक्स में एग्जैक्टली। अभी जैसे केतु जो है वो लियो राशि में आने वाला है, तो लियो जो राशि होती है उससे आप हमारे फादर को भी डिनोट करते हैं। तो कहीं ना तो कहीं सबका थोड़ा ये होगा कि सबके फादर की हेल्थ को थोड़ा इशू होगा, ऑन एंड ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहेगी। सो दैट्स अ प्रेडिक्शन विच आई कैन डू ओवरऑल। ऑब्वियसली आपको हर पर्सनल कुंडली देखनी पड़ती है विद एन एक्यूरेट प्रोजेक्शन, बट ओवरऑल सबको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। अभी से सबको अपने फादर्स को बोल देना चाहिए कि भाई आप हेल्दी खाओ, आप एक्सरसाइज करो, बिकॉज ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बॉडी ऑल्सो, फॉर एनी थिंग। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी केतु 18 मई के अराउंड ट्रांसिट करनी, 18 मई के, यस। ओके। एंड 15th को हमारा जुपिटर, 15 को हमारा जुपिटर ट्रांसिट, और 18th को हमारा केतु का राहु केतु दोनों का, क्योंकि वो दोनों साथ में ट्रांसिट करते हैं आफ्टर 18 months। वाओ, तो ये मंथ ऑफ मे इज क्वाइट लॉन्ग। यस एग्जैक्टली। सो अभी काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जी चेंजेस देखेंगे इस पीरियड में। इफ़ यू हैव क्राइड, यू हैव फेल्ट इमोशनल, यू डिडंट फील लाइक टॉकिंग टू समवन, अपने घर पे छुपे हैं, बैठे हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे, दिस इज़ ऑल नॉर्मल, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है कुछ ना तो कुछ। यू हैव फेल्ट दैट, यू हैव फेल्ट कि
they are not happy from inside. I'm not fulfilled. This is all because of the transition and the planetary movements. It's a time to basically just reflect on yourself. और ऐसा कोई बुरा नहीं है कि हाँ आप डिप्रेस्ड ही हो गए हो. इस जस्ट आई थोड़ा रिलैक्स करो, घर पे रहो. एंड यूर राइट एक्चुअली लास्ट 6 मंथ से आई डोंट वांट टू एक्चुअली सी पीपल. मतलब मुझे ये नहीं, मुझे कोई मत दिखाओ. आई जस्ट वांट टू बी विद माई सेल्फ. आई एम हैप्पी. आई एम नॉट सेइंग कि मैं कहीं ना कहीं से कंटेंट नहीं हूँ या कुछ है, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल बीइंग विद माई सेल्फ. मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ जब मुझे गैदरिंग में जाना पड़ रहा है. And but yeah, I think this time intuitively I feel कि मुझे I need to work on myself, चाहे whatever है, मैं अपना, चाहे मैं अपनी meditation कर रही हूँ, yoga कर रही हूँ, या reading a book, या listening to a podcast, whatever. But I just feel like कि I just want to be with myself. Yes, that is important. And as you mentioned about meditation, I think that's the key to peace. And it's so important irrespective of where your planets are. Meditation is the best remedy one can do. And meditation ऐसा नहीं है कि आपको घंटों बैठ के meditation करना है और people say कि नहीं हमसे तो meditation हो ही नहीं पाता because of the overthinking, thoughts running in their heads. It's not about that. आप 5 minutes बैठो, just take a deep breath. 5 minutes बैठो, just sit on a place, relax. And if you don't have 5 minutes also, सोने से पहले instead of watching reels on Instagram, बस आईज क्लोज करके 5 मिनट्स बेड पे लेट. ठीक है, ट्रस्ट मी, यू विल सी द अदर डे इज सो मच बेटर देन द प्रीवियस डे. 100%. बिकॉज अब वो अपने माइंड को अपने पीस दिया एंड वो पीसफुल आपको स्लीप आई है उस दिन. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक आज की जनरेशन हो गई या वर्ल्ड में एवरी वन सो मच इन टू सोशल मीडिया that they have forgotten about all these things. Like जैसे I remember when I was a kid, my mom always used to read a bedtime story. कि नहीं आप स्टोरी सुनो या कुछ बातें करके फिर सुलाती थी. कभी भी मैंने फ़ोन नहीं लिया हमारे माँ. तब ईयर हो गई. एग्जैक्टली, के भी नहीं. और मतलब किसी टाइप का भी कोई गैजेट जैसे हमें एक्सपोज नहीं था. TV also, even I remember when as a kid, I was only allowed to watch TV for 1 hour in 24 hours. सो बस वो 1 घंटा पूरे दिन में वेट होगा था. नहीं खाने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है. सो आई थिंक वी यूज टू क्रेव फॉर दैट. बट आजकल तो इट्स नॉट अबाउट द किड्स, इट्स अबाउट एवरी वन. सबके पास अपना फ़ोन है. एवरी वन इज़ ऑन इंस्टाग्राम, एवरी वन इज़ ऑन फेसबुक और एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया. एंड सब लोग बस पूरी महफिल में 10 लोग बैठे एंड एवरी वन वाज ऑन देयर फोन्स. Absolutely. सो दिस इज सच अ बैड थिंग. एंड आई फील ये आपकी मेंटल हेल्थ को तो डेफिनेटली बर्बाद कर ही रहा है. वक्त हमें सिक्यूट कर रहा है, दो ही सा रहा है इतनी कि हम उसमें engrossed हैं, बट बहुत लोनली कर रहा है कहीं कहीं आपको ये. सो डेफिनेटली एट टाइम्स मैं बहुत कम अपना फ़ोन चेक करती हूँ. तो आई कीप इट अवे व्हेन आई हैव टू. ऑनेस्टली मुझे बहुत कई बार अपना फ़ोन एक वो लगने लग जाता है कि व्हाई डू आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस. मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी. मुझसे नहीं होगा. मुझे अब काम लगता है कभी रही कि इट्स द वर्क दैट आई हैव टू डू. कि ईमेल्स हैं, फ़ोन्स हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, दे आर इन स्कूल. सारे कम्युनिकेशन ईमेल्स पे हो रही है. फिर आज तो स्कूल क्लास के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं. उसको भी आपको एक फैमिली के तो बने हुए हैं, फ्रेंड्स के बने हुए हैं, देन व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग उसके बने हुए हैं. नाउ वी हैव मीडिया भी बन गए. प्लीज़ यार. और वहाँ पे व्हाट्सएप पे एवरीबडी एक्सपेक्ट क्या फटाफट रिप्लाई कर दूँगी. मुझसे नहीं पता. So yeah, I'm just quitting everything. No, I think that is making you peaceful, and that's why you are able to sleep properly at night. And बहुत अच्छा, yeah, exactly. That's true. Yeah, that's true. ट्रू. तो लेट्स टॉक अबाउट, इफ यू आर ओके, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ी सब राशि का बात करते हैं कि हर साइन में कि क्या होने वाला है. लाइक आपने जेमिनाई बताया, दे विल डेफिनेटली, वो सबसे ज़्यादा फील करेंगे. चाहे डंडा है वो भी वो सबसे ज़्यादा फील करेंगे. प्यार है गिल का वो भी, ब्लेसिंग है वो ही सबसे ज़्यादा फील करेंगे. बट ईच वन ऑफ अस किसी का एक एस्पेक्ट, बिकॉज 12 बॉक्सेस और 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो फ़र्क करने वाला है उसका. तो So let's start with the first राशि, which is Aries. तो एरीज वालों को तो बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस आने वाली है. मतलब उनको तो ऐसा लगेगा कि हम बैठे ही क्यों है, मतलब सॉरी, काम ही क्यों करना पड़ रहा है, बैठे रहो, पड़े रहो. प्रोक्रेस्टिनेशन एट इट्स पीक. ओ but honestly that is the remedy.
टू गेट अप फ्रॉम द बेड. वो जो उन लोगों को वो फीलिंग आएगी कि अलार्म 5 मिनट्स और स्नूज कर देते हैं, यू नो, बट दे शुड नॉट डू दैट, क्योंकि वो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग जो वो इस साल करेंगे. उनको लेजीनेस जितना वो जल्दी छोड़ दें, दैट वुड मेक देम रियली सक्सेसफुल, क्योंकि उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, उनकी रिलेशनशिप्स में इफेक्ट होगा, हेल्थ में इफेक्ट होगा. एंड एरीज की साढ़े साथी ही चल रही है. एंड यू नो, शनि देव जो हैं वो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी चाहते हैं. तो ऑनेस्टी विद योर सेल्फ एज वेल. Just like the guru is like Exactly. exactly on time, Right. do it truthfully, and yeah, Sure. सो इसलिए जो एरीज वाले हैं उनके तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है ना, उनकी वो रेमेडी भी यही है कि जस्ट डोंट बी लेज. बेड से ऊपर सुबह उठते ही उठ जाओ और काम करने लग. दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग दे कैन डू. एंड उसके बाद अगर वो करते हैं, दे ग्रो स्पिरिचुअली, दे विल ग्रो फाइनेंशियली, एंड सब कुछ अच्छा रहेगा. बट डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा. हाँ, टॉकिंग अबाउट टॉरस विच इज़ अ सेकंड राशि, टॉरस वालों को इस बार बहुत ज़्यादा इम्पल्स बाई का मन करेगा. उनको लगेगा अरे ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं. तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इम्पल्स बाइंग. उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्पीच पर ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए इस साल बहुत ही ईजी है किसी से भी ब्लंटली बात करना. oh मतलब रूड नहीं बोलना. हाँ, रूड नहीं होना है किसी के साथ, क्योंकि टॉरस का भी ये होने वाला है कि आप देखेंगे कि टॉरसन्स जो हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा यू नो ब्लंटली आपको जवाब दे देंगे. एंड देन लाइक वी आर नॉट अपोलोजाइजिंग एंड वी डोंट फील बैड, हमने कुछ गलत नहीं बोला, बट एक्चुअली दे हैव सेड समथिंग रॉन्ग. सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन विद देम. एंड गुड पार्ट ये है कि दे विल लर्न समथिंग न्यू. कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, दे आर इंटरेस्टेड यू नो इन लर्निंग सम डिफरेंट लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेजेस. तो आप फ्रेंच सीखते हैं, लोग जर्मन सीखते हैं, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. तो वो उनके लिए अच्छी चीज़ है कि वो ये चीज़ सीख सकते हैं इंसान. एंड जेमिनी तो मैंने आपको बताया ही है कि इट इज़ वेरी गुड, बट या यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद योर हेल्थ. सो आपको खाने का ध्यान रखना है. देन लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ राशि विच इज़ कैंसर. कैंसर वालों को इस साल बड़ा बन गएगा चैरिटी करने का. ओके. उनको बड़ा दिक्कत ही साल आ गया कि चैरिटी करते हैं आप सब करते हैं. दैट्स अ गुड थिंग डेफिनेटली. उनको ट्रैवलिंग का भी बहुत मन करेगा, मे बी किसी रिलीजियस प्लेस में जाएं, घूमें फिरें. बट उनका इशू ये आएगा कि उनका बजट नहीं बन पाए. सो फॉर देम द की इज़ बजटिंग. उनको बजटिंग करनी चाहिए ये साल, ध्यान रखना चाहिए अपने एक्सपेंसेस का भी. भले ही चैरिटी करें, चैरिटी इज़ द बेस्ट रेमेडी समवन कैन डू, बट चैरिटी के साथ साथ दे शुड मेंटेन द बजट, कि उनका कैसा है बजट और क्या कहाँ पे पैसा स्पेंड करना है, कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर नहीं है. ऑल्सो इस बार उनसे बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी. फ़ोन टूट गया, फ़ोन गिर गया. कैंसर से. हाँ, कैंसर से. गिलास, पानी का गिलास पकड़ा, वो गिरा दिया, वो टूट गया. सो दे हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद ऑल दीज थिंग्स. ओके. कि नहीं, आपको यू नो सब कुछ संभाल के आराम से रखना है. और स्पेशली विद द फोन्स, क्योंकि फ़ोन इज़ आवर लाइफ नाउ डेज. सो वो इम्पॉर्टेंट है. कमिंग टू द फिफ्थ राशि विच इज़ लियो. फॉर लियो इट्स द बेस्ट ईयर. अच्छा. सबसे अच्छा ट्रांजिशन अगर आ रहा है तो वो लियो के लिए आ रहा है. बट अगेन एज आई सेड, हेल्थ इश्यूज़ का ये होता है कि हेल्थ इश्यूज सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. एंड आई थिंक दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स दैट वी हैव गॉट. एवरी वन ऑफ अस are really in a bad, bad shape, I can say, or bad eating habits. So वो तो definitely, I can, वो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए. वो सब लोगों को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है with health and eating. But with Leo, this is an amazing year. They'll see all growth in their life. They'll see success, promotions, and if someone has been waiting to get married, this is the right time for them to get married. Also, career-wise will grow. So it's a very good year for Leo. So I think they should not worry about anything. बस ये है कि हाँ, just be thankful. Gratitude तो बहुत ज़रूरी है. ये नहीं है कि नहीं हाँ, हमारी राशि में तो बहुत अच्छा है, बिकॉज और भी प्लैनेट्स भी हैं जो आपको सबक सिखाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे. लेकिन विद जुपिटर एटलीस्ट यू कैन बी अ लिटिल रिलैक्स. तो आपको थोड़ा सा ये है कि उस चीज़ के लिए you don't have to worry about that. So Leos are going to rejoice after.
Definitely. Okay. Let's go to Virgo. So Virgo वालों भी थोड़ा difficult है. This is the year for a lot of challenge for their personal life, financially, relationship. थोड़ा थोड़ा challenges सबके लिए हैं Virgo के लिए. And I would say Virgo is the Rashi which has to, has to be a little more attentive, or they have to take a little more care of themselves, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है ये चीज़, लेकिन in terms of health या overall I would say, like, health, anything can go wrong. Yes, ये गिर के देने, they have to be a little careful with anything in their life. But as I said, if you are maintaining a good lifestyle, you are punctual, you are in that discipline, you're eating healthy, ऐसा नहीं होता है, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाता. एंड आई एम टॉकिंग ओवरऑल वर्गोस के लिए. यू नेवर नो, क्योंकि हर किसी की चार्ट गंदा होता है. देयर इज़ अ डिवाइन हेल्प इन द चार्ट, सो विच इज़ हिडन एंड विच वी कैन ओनली टेल आफ्टर सीइंग द चार्ट. सो ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ कोई डरिएगा मत ये सोच के कि हम तो वर्गो हैं, हमारी तो ये साल बहुत बर्बाद जाने वाला है, बहुत ख़राब जाने वाला है. ऐसा भी नहीं है. इट्स जस्ट कि उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर राशीज. But as I said, maybe, if the person is getting some divine blessing from somewhere or the other in the chart, maybe that can nullify the effect of this transition. And then with Virgos, I would also like to add one more thing. उनको इस साल hospital भी जाना पड़ सकता है. It's not just because of themselves. It's just कि maybe कोई उनकी family में बीमार हो, तो उसको देखने जा रहे हैं. एंड देयर कम्स अ रेमेडी ऑल्सो, जो मैं बोलती हूँ, अगर आपके चार्ट्स में ऐसा हो या फिर आपको लिखा है कि हॉस्पिटल जाना है, तो वाई नॉट जस्ट गो बाय योर सेल्फ, एक कॉफ़ी पी कर आ जाओ वहाँ जाके. सो दिस इज़ अ रेमेडी ऑल्सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड काफ़ी लोग करते हैं ऐसा कि आप जस्ट विजिट कराओ हॉस्पिटल, ऐसी वहाँ पे कैफ़े में थोड़ी देर बैठो, चाय कॉफ़ी कुछ लो, वहाँ पे खाओ वहाँ पे, एंड देन कम बैक. सो आपका प्रॉमिस जो कुंडली ने करा ना, या आप चैरिटी की कर सकते हो. एग्जैक्टली, चैरिटी कर सकते हो. आई थिंक चैरिटी हो गया, हेल्पिंग पीपल हु आर इन नीड, और एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन और एन ऑर्फनेज एजुकेशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल रेमेडीज़ हैं which anyone can do, which you need a time, you don't need any time or any planetary positions for that. These are a few remedies, universal remedies anyone can do. So don't need to worry about कि यार मेरा planet कहाँ है या कब करना है, तभी करूँगा जब ये दिक्कत आएगी. ये ऐसा ही है. अगर आप, कई चीज़ें ना ऐसी होती है जो आप खुद लाइफ में कर ही रहे हो तो एज अ रेमेडी. तो अब जैसे किसी किसी का लाइक कई सारे लोग मांगलिक हो, अगर आप मांगलिक हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एवरी डे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, आप अपना ध्यान दे रहे हो, तो वो मांगलिक का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाए. यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग, या कोई और रेमेडी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स समथिंग विच यू आर ऑलरेडी डूइंग, सो यू वॉट नेवर फील द इफेक्ट ऑफ मांगलिक दोषी हो. तो ये कई चीज़ें हम कर रहे होते हैं, जस्ट टाइम से, हम काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच आई कॉल एज रेमेडी इन डिस्गाइज. तो ये काफ़ी सारी चीज़ हेल्प करती है. So for Virgo people, it is a little bit of challenging year, but nevertheless stay positive. I would say ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. You will see good time, क्योंकि चैलेंज तभी आता है जब आगे अच्छा टाइम आने का. एब्सोल्युटली, ठीक है ना. रात भी तभी आती है जब दिन आने वाला है नेक्स्ट डे. तो डेफिनेटली you don't need to worry about it. Let's go on Libra now. Libra, again, very good time for Libra. I think that I would say second best time for them after Leo. It would be a good year again, financially, relationship wise, everything. And also, especially for people who have been trying to conceive a baby, it's the best year for them. So like if they have been trying really, really hard for years, it's a really good time, and you should try, at least try this year. It might give you positive results. एंड बस ये कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, पैसा कमा रहे हैं, बट उसको प्रॉपरली सेव करना, कहाँ यूज़ करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू जस्ट अर्निंग मनी एंड यू आर नॉट एबल टू सेव, आप उसको बचत नहीं कर पा रहे. सो दैट इज़ अ थिंग जो आपका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए विद लिब्रा, आई वुड से.
Otherwise, it's a good year. They should not worry a lot about Jupiter transition. And basically, this is all I'm talking about Jupiter transition. क्योंकि और सारे जैसे planets move करते ही हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा effect होता है. But गुरुदेव का थोड़ा डिवाइन ब्लेसिंग ज़्यादा रहती है. एंड इट्स द बिगेस्ट प्लैनेट, तो यस हमारे सोलर सिस्टम में तो वो दिखता भी प्रोमिनेंटली है और आई थिंक वो इफेक्ट भी बहुत प्रोमिनेंटली करता है. एंड सो या Yes, exactly. And also, as you said, that Jupiter is the biggest planet of our solar system. So, जब वो ट्रांजिट करते हैं ना, तो आपको एक महीने पहले से वो वाइब्स और वो एनर्जी फील होने लग जाती है. तो वो लाइक 14-15 मई को ट्रांजिशन हो रहा है जुपिटर का, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द वाइब्स अभी से या 1 मंथ पहले 14 अप्रैल से आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें फील होना शुरू हो गई होंगी. यू नो, आइदर इट इज़ चैलेंजिंग फॉर यू और इट इज़ गुड फॉर यू. आपको फीलिंग आने लग जाएगी एंड यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ एज वेल. आपने एरीज बोला ना जिनको सबसे ज़्यादा नींद आएगी, ऑल्दो आई डोंट नो माई कुंडली. We can have a look after this. आपकी कौन सी राशि है? We can check यार. अब मुझे लग रहा है मुझे नींद बहुत आ रही है. कितनी आ रही है Aries? Like even Aries नींद नहीं, laziness बहुत ज़्यादा हो जाए on. Okay हाँ. Okay. नींद वाला issue is different. ना, but ये है कि उनको थोड़ा लेजीनेस ज़्यादा होगा कि यार यार क्यों करना, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, थोड़ी देर 1 घंटा और ब्रेक ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो वैसा होगा और and so we finish the liver and then let's come talk about Scorpio. Sagittarius. For Scorpio. Okay, sorry. That's okay. So we talk about Scorpio now. Scorpio again a little bit challenging for them as well this year. थोड़ा सा इन-लॉज से उनको कुछ प्रेशर फील हो सकता है अपने इन-लॉज के साइड से, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन-लॉज थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं लाइफ में. ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो बोलते नहीं थे, अब कहाँ से आ रहे. दे माइट फील दैट. बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है उनके लिए भी फाइनेंशियली एंड पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप, स्पेशली अपने स्पाउस के साथ. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर के टाइम में मे बी थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं. सो आई थिंक दे नीड टू काम पेजेंट या काम डाउन थोड़ा सा रखना चाहिए. थोड़ा जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है, तो अपने आप को काम रखो, पीसफुल रखो. ऐसा कुछ हो सकता है विद देम. थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है एज आई सेड विद अदर स्टफ. बट या एज आई सेड कि आप जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं ना, लाइक एंड विद द स्कॉर्पियन स्पेशली, उनको तो रेमेडीज़ ये करनी चाहिए कि मंदिर जाएं, पूजा करें, एंड दैट इज़ वेरी लॉज जैसी खुश हो जाएंगे. हाँ 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 एग्जैक्टली. एंड विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा होता है. लाइक फॉर एवरी वन इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद जुपिटर ट्रांजिशन एंड विद एनीथिंग एक्चुअली इन जनरल, आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, यू लाइटिंग अ दिया फॉर विष्णु भगवान, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड इट्स नॉट अगर आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करके, इफ़ यू बिलीव इन अदर रिलीजन्स, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने गॉड के आगे लाइट नहीं कर सकते. इट्स बेसिकली द कनेक्शन विद यू एंड द गॉड डिवाइन. एंड येस एग्जैक्टली. एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो स्पिरिचुअलिटी विल लीड यू टू पीस. सो डेफिनेटली आप जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना आपको पीसफुल फील होगा. So with Scorpions for this year, I would suggest कि आप जितना spiritual हो, meditation, yes. So try to cool yourself, ज़्यादा hyper नहीं हो, and everything will be fine. ऐसा नहीं है कि नहीं. And with like as I mentioned और Virgo कि वो individual कुंडली का भी होता है असर. अगर what if you are a Scorpion and आपको एक divine help आ रही है कहीं से, so maybe you're safe. You're not getting any interference from our in-laws. So that can definitely be a thing. So do not get disheartened after listening to this. Let's come to Sagittarius now, which is my Rashi. So with Sagittarians, it is a good year for them as well. They will grow financially. Health is also not bad for them, and also the career will grow. Even they can get really good collabs this time. And I think, yes, this is such a good collaboration. So for all the Sagittarian buddies, I would say it's a great year for collaboration. So do think about it. And yes, you should
talk about collaborations more if you have been always wanting to do that. So it's a good year for them. Only sad part here, I would say, is they might hear something bad from their in-laws family. So I cannot comment on how bad it will be, but they might hear something like a bad or a sad news to your no in-laws. Okay. And let's come to Capricorn now. Capricorn, again, a little bit of challenges there for them, but as I said, with all the remedies, you can actually overcome the challenges. But it is a little bit challenging for them as well with finance, with personal life, with relationships. But I would say with Capricorn especially, during the months, later months of the year, they will feel the relationship stability as well. Maybe from past years, the relationship was not that stable, but this is the time where the relationship can be stable also. So don't worry too much if you're fighting with your spouses. So there is good time coming for your relationship stability. Okay, so we'll talk about Aquarius now. Aquarius, again, they're going to have the best time of their life. Again, really good things for them. Increase in creativity, education, and like if anyone wants to, learn something new, any skill they want to learn, develop, this is the best time for them. So I think it's really a win-win situation for the Aquarius people as well. So they should work on themselves and yes, they should be happy that this transition would definitely bring good in their life. Okay, and last, we'll talk about Pisces now. So with Pisces, they will have really good chances of traveling foreign this time. If you have had a very dream कि यार ये सब होगा हमारा foreign tour, तो अब वो time आ गया उसके लिए जब वो foreign tour कर सकते हैं. And but with foreign tour, expensive चला जाता है, of course. So I think they both go hand in hand. एंड इस वजह से एक्सपेंडिचर उनका थोड़ा बढ़ेगा. इट कुड बी अदर रीजंस ऑल्सो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन की वजह से. बट हाँ, अगर फॉरेन आपको जाना है, फॉरेन जाना चाहते तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू ट्रैवल. और पीपल लाइक जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम फॉर देम एज वेल. सो इट्स डेफिनेटली समथिंग विच यू कैन लुक इन टू अगर आपने अभी तक सोचा नहीं और आप सोचना चाह रहे थे. Also, the remedy for Pisces this year is hiking. जितना वो hike पे जाएंगे, that would be really good for them. Oh yes, like that. Yes, exactly. So hiking is really good for them. So that would work as a remedy. It is also good for your health, good for people who love trekking or hiking. So जो travel पे जा रहे हैं, आप hike पे चाहिए इससे आएंगे. Exactly. वैसे भी बचेंगे. सो ये था हमारी 12 राशियों का जुपिटर ट्रांजिट. ओके, तो आई वांट टू आस्क, ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट है, बट कोई ऐसे यूनिवर्सल जुपिटर की रेमेडी है जो सब कर सकते हैं कि जो हर किसी के लिए फिट रहेगी? ओके, सो जुपिटर की यार रेमेडी एक तो मैंने बताया, जो भी जुपिटर इज योर फादर, जुपिटर इज योर गुरु, एंड गुरु कैन बी एनीबॉडी, योर बेनेक्टर और एग्जैक्टली. सो पूरे मतलब ये जुपिटर ट्रांजिट, एज आई सेड, एवरी ईयर देयर इज अ जुपिटर ट्रांजिशन. तो आप अपने फादर के साथ, आपके गुरु के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा बनाइए, उनकी रिस्पेक्ट करिए. डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर गुरु, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर फादर. एंड उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान है, बट कभी कभार हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप जो नॉर्मल रेमेडीज़ हैं, वर्शिपिंग तो मैंने बताया है कि आप अपने जो भी आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उनको वर्शिप करिए. उसके अलावा आप थर्सडे को मंदिर जा सकते हैं, या फिर आप जो भी रिलीजन यू फॉलो, यू कैन गो वर्शिप देयर. आप नॉर्मल जैसे होगा, मंदिर में जाकर हम सेवा करते हैं, गुरुद्वारा में जाकर हम सेवा करते हैं, आप खाना बांटने का काम करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप. दैट इज़ हेल्पिंग अदर पीपल. यू आर हेल्पिंग इन द टेम्पल और गुरुद्वाराज और वट एवर यू कैन डू फॉर द रिलीजियस प्लेस. मान जी. एंड ऑल्सो आप चैरिटी कर सकते हो. आप कहीं पे कोई भी रिलीजियस प्लेस बन रही है, आप उसमें चैरिटी कर दो. दैट इज़ अगेन अ यूनिवर्सल रेमेडी. ऑल्सो अगर आपको ये सब के अलावा अगर आपको कुछ करना है, तो आप थर्सडे का दान होता है, आप दान कर सकते हो. बट वो थोड़ा स्पेसिफिक भी हो जाता है एट टाइम्स. अगर आपका
आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ का दान ज़्यादा सूट करेगा। पर इन जनरल अगर आपको ज़्यादा है दान करना है, चैरिटी करनी है, फूड चैरिटी बेसिकली करनी है, तो यू कैन डोनेट एनीथिंग विच इज़ येलो इन कलर ऑन थर्सडे। तो आप पी है, वो हल्दी होती है, या फिर आपकी चना दाल होती है, सो ये भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक राशि इसके लिए भी होता है कि हाँ आप ये राशि है तो आप उसके हिसाब से करो, बट अगेन एज आई सेड कई बार आपको कई रेमेडीज आपके चार्ट्स देख के ही बता सकते हैं। तो दिस इज अगेन दिस इज अ यूनिवर्सल रेमेडी। यस, चैरिटी इज़ द बिगेस्ट रेमेडी विच यू कैन डू। कोई भी नीडी आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो फूड हो चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, आप उसकी हेल्प कर दीजिए, डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल। Okay, just in the last, I would say, topic of this podcast, I want to ask कि मैंने पढ़ना शुरू किया, as I said, I've done basic level numerology, I've done basic level astrology also. तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, एंड लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस चल रहे थे कि आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर कि व्हाट इज़ इट एंड कैन इट रियली हेल्प, क्या इट रियली वर्क्स की रेमेडीज होती हैं ओके भाई, क्योंकि यू सी पीपल अराउंड, आई सी फ्यू पीपल जो करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर देम एज दे से। तो मुझे था कि ठीक है और भी काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, आई जस्ट वॉन्ट मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट आई एम नॉट सपोज टू डू। तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू इनटू इट। और मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन भी है इस फील्ड में, पीपल एक्सप्लॉइटिव बहुत, आपको पता ही नहीं है वो कुछ भी बता रहे हैं, यू जस्ट बिकॉज इट्स लाइक अ साइंस, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपको बोलेगा आपकी बॉडी में ये है, इट्स अ वेरी करप्ट प्रोफेशन एज वेल, कि देन यू हैव टू लिसन। तो लाइक वाइज मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्टडी एंड सी। तो बेसिक मैंने जो भी करा स्टडी मैंने करी है, तो उसमें आई गॉट टू नो कि इन दी एंड द क्रक्स कि जो भी आप लिखवा के लाए हो ना अपनी चार्ट पे, वो आएगा नहीं आएगा। मतलब अगर आप कोई दुख भी लिखवा के लाए हो तो वो हो गए, चाहे वो अगर आपकी टांग टूटने लिखी है तो हो सकता है आपको खरोंच आ जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए टूटने की बजाय, तो बट इट विल स्टिल हैपन। ठीक है, सो इट्स लाइक बेसिकली अ वेदर फोरकास्ट। और रेमेडीज़ जो होती हैं वो ये होता है कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है तो आप जैकेट पहन लेना, ठीक है, आप बीनी पहन लेना, बट ऐसा नहीं होगा कि ठंड नहीं हो, हाँ ठंड तो होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, आप बीनी पहन लेना, आप ग्लव्स पहन लेना, आप जींस पहन लेना, बट ठंड तो फिर भी लगेगी। यस, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी दैट। एंड इन दी एंड मुझे जो लगा कि ये रेमेडी वो रेमेडी बहुत कुछ करके अब घर में जब आप बहुत सारे लोग रह रहे हो देन ऑल्सो इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि हर वो जो कलेक्टिव कर्मा होता है वो भी एक चीज़ होती है। इन दी एंड मुझे लगा कि जो हर चीज़ की एक ही रेमेडी है, यू मेडिटेट, यू डू योर साधना एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। यस, क्योंकि एक तो आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर रहे हो, आप सोचते हो, परेशान होते हो, दैन ओशो को मैंने एक बार बोलते हुए उनके टेप में सुना था कि यू आर ऑलवेज प्रेग्नेंट विद योर नेक्स्ट मोमेंट, यू आर कॉन्स्टेंटली प्रेग्नेंट विद योर नेक्स्ट मोमेंट। तो अगर इस मोमेंट में ही आप हैप्पी नहीं हो, पीसफुल नहीं हो, देर इज़ नो वे आप नेक्स्ट मोमेंट में पीसफुल हैप्पी या मेंटेन हो सकते हो। सो मेडिटेटिंग हेल्प्स यू क्रिएट योर फ्यूचर। तो वही है कि सूली का कंडा भी बन जाता है। जैसे हम साखी सुनते थे कि कोई बहुत चैरिटी करता था, बहुत पुण्य दान करता था, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा करा था कि उनको सूली चढ़नी थी, बट उनको उस पॉइंट पे आके सूली नहीं चढ़, एक कांटा चो गया और वो बच गए सूली से, बट कांटा चुभा तो उतने नहीं रह गया। तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, आई मीन जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि जो हम लिखवा कर आए हैं वो तो होगा ही हमारे साथ। वो जो हमारा वो जो ग्रिड है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था 12-9-12 वाला जो ग्रिड है, वो जो हम बॉर्न हुए वो प्रोमिसेस उसी दिन हो गए। फिर उसको पता है हमारी शादी कब होगी, बेबी कब होगा, हमारा फाइनेंस कैसा रहेगा, हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हमारा करियर कैसा रहेगा, एंड हमारी डेथ कैसे होगी। तो वो सब लिख कर आ गया है एंड वही हम उसी के आजू बाजू घूम रहे हैं। सो बेसिकली ये एक डिबेट तो चलता ही रहता है हर किसी का कि भाई हमने जो लिखवा रखा है देन वाई टू वरी अबाउट इट, बट वो प्लैनेट्स ही तो है ना जो आपको वरी भी कराए। एब्सोल्युटली, वो भी आप लिखवा के लाए। एग्जैक्टली, वो भी आप लिखवा के लाए। एंड आई थिंक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे यही है कि
आपको फ्रैक्चर से बचा देगी, ब्रूज हो जाएगा लेकिन फ्रैक्चर से तो बचा देगी कब। एंड आई थिंक उससे आपको थोड़ा सा तो मेंटली आप सेटिस्फाई हो जाओ। Absolutely. एंड दैट इज व्हाई यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल। अब आप सोचो आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स एंड इट्स नॉट ओनली यू, इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट एवरीवन। बट हर कोई तो नहीं जा रहा एस्ट्रोलॉजर के पास, या हर कोई तो नहीं मान रहा है, किसी को लगेगा अरे ये क्या। दैट इज ऑल्सो देयर इन योर हॉरोस्कोप, यू नो, कि मैं इस टाइम पे मानूंगा एस्ट्रोलॉजी होगी, या मैं कभी लाइफ टाइम नहीं मानूंगा। वो भी आपको बात है। एग्जैक्टली, ये भी आपका लिखा हुआ है, तो सब कुछ तो लिखा हुआ है। हम बस एक कठपुतलियों की तरह हम बस चल रहे हैं यहाँ पे। सो बस ये होता है। एंड जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट पास्ट कर्मास एंड यू नो पास्ट लाइफ, आई थिंक यही होता है जब राहु की पोजीशन ऐसी होती है कुंडली में, जब राहु की दशा, तो वो खोलना शुरू करता है पिछले चैप्टर्स लाइफ की, पास्ट लाइफ। अरे अच्छा कर्म है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा ही दो, इस साल भी इसको अच्छा कर, अरे गलत हो गया, यू नो, चल बैन रे जाना शुरू करो इसकी। सो दैट इज या पास्ट कर्मा हिटिंग यू इन योर प्रेजेंट लाइफ। सो डेफिनेटली मैं हमेशा इसीलिए यही सजेस्ट करती हूँ एंड यही बोलती हूँ कि आप प्रेजेंट अपना जितना अच्छा कर सकते हो, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट पास्ट। अब हो गया, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। प्रेजेंट जितना अच्छा रखोगे, फ्यूचर उतना ब्राइट रहेगा। एंड डेफिनेटली प्लैनेट्स आएंगे, आपको डंडा भी मारेंगे, आप गिरोगे उठोगे, बट आप किस इंटेंसिटी के साथ गिर रहे हो, यू नो। इफ अगर आप पंक्चुअल हो तो आप उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं गिरो, आपको एक हल्का सा धक्का लगेगा एंड देन यू आर अगेन बैक टू योर शूज। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे फॉलो, लाइफस्टाइल कैसे फॉलो कर रहे हो। एंड एक डॉक्टर के पास भी अगर आप जाओगे ना, वो सबसे पहले यही बोलेगा, अरे लाइफस्टाइल सुधार, ठीक है, आप ईटिंग हैबिट्स सुधारो, आप फिजिकल अपनी हेल्थ को सुधारो। सो वही एक एस्ट्रोलॉजर भी वही बोलता है, वो बस ये है कि वो आपकी प्लानिटरी पोजीशंस देख के वो बोलता है। एंड आप देखो कहीं ना तो कोई रेमेडीज़ भी, जैसे हम दान के लिए भी बोलते हैं, तो हम दान पर लेके क्यों बोल रहे हैं, हम किसी की हेल्प करने के बोल रहे हैं। आप उठोगे, घर से जाओगे, एक डिसिप्लिन क्रिएट हो गया है। हाँ, अब फॉर सन अ ब्यूटिफुल रेमेडीज़ कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ मॉर्निंग में। अब कई लोग मेरे पास बोलेंगे कि सूर्य जल हम चढ़ा तो देंगे, 10 बजे चढ़ा लें, हम उठते ही नहीं है इतने बजे, हम उठते 11 बजे, हम 11 बजे चढ़ा लें, क्यों? तब तक सवर है। एग्जैक्टली, रेमेडी का तो अभी में मॉर्निंग एनर्जी सन की लेनी थी, गई वो तो गई। एग्जैक्टली। सो रेमेडी तभी वर्क करती है जब एक्चुअली आप चाहते। आप सोशल मीडिया में देखोगे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं अबाउट स्विच वर्ड्स, एंड एवरीवनस लाइक, अरे हमने तो स्विच वर्ड बोला, हमें तो पैसा नहीं मिला, ये तो सब बकवास है। या कोई लोग बोलेंगे कि यार वी डोंट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दैट। सबका अपना अपना टेक है। एंड आप ये देखो ना कि आपने वर्क कितना करा उसके, आपने क्या वो डिसिप्लिन के साथ बोला। या जैसे हम लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हमारा बहुत ही एक रेमेडी होता है, आप ये प्लैनेट वीक हो रहा है, आप इसका मंत्रा चैंट करो एंड सी द रिजल्ट्स। बट आपको पता है एक मंत्रा जब आप 1,25,000 टाइम बोलोगे, उसके बाद वो असर करना चाहिए पर उस मंत्र को आपको एग्जैक्ट, जब तक वो मंत्र आपकी सांस बनेगा तब तक आप वैसी थी गई एग्जैक्टली। तो वन भी सोचो ना, बट क्या आप 1,25,000 टाइम्स कर पा रहे? क्या आपके अंदर वो एनर्जी है? क्या आप सुबह उठ रहे हो, हाँ मैं 6 बजे उठ रही हूँ, मैं बैठ के ये मंत्र जाप कर रही हूँ, तभी तो उसका इफेक्ट मिलेगा। सो आजकल लोगों को लगता है रेमेडीज हम कर रहे हैं, हम डेली बस एग्जैक्टली ऐसे नहीं भी, हाँ 30 सेकेंड्स के इंस्टेंट चीज़ें, कई चीज़ें, कई एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडीज बताते हैं इंस्टेंट मनी के लिए, अलग अलग चीज़ें में भी वो किसी के लिए वर्क कर रही है, किसी के लिए नहीं कर रही है। बट आई थिंक सारी प्लैनेट्स, आपको ज़्यादातर प्लैनेट्स यही सिखाते हैं कि डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट, पेशेंस बैक टू बेसिक। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वही, यू नो, द थिंग्स व्हिच वी लर्नड इन आवर स्कूल डेज व्हिच वी हैव फॉरगॉटन नाउ, कि पेशेंस, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन कितना यूथफुलनेस। एग्जैक्टली। सो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी आपको कहीं ना तो कहीं वही सब सिखाती है। एंड वही आपको वही हेल्प करती है थोड़ी बहुत रेमेडीज करने से, यू नो, इफ़ यू गेट दैट मेंटल पीस। सो व्हाई नॉट? आप डॉक्टर के पास भी तो जाते हो ना। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो एंड यू नो यू आर हैविंग द पिल, बट विद द इंटेंशन में ठीक नहीं हुआ तो
तो आप कभी ठीक ही नहीं हो पाओगे, बिकॉज ऑन योर माइंड यू आर यार मैं हो पाऊंगा कि नहीं, यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट इट। अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, या एज आई सेड अबाउट सूर्य की रेमेडी कि आप जल चढ़ाओ, हम 11 बजे चढ़ाएं 10 बजे चढ़ाएं, so there's no point, you know. I don't feel like answering those questions also because जब सूर्य रेमेडी बोल रही है कि सनराइज पे आपको सूर्य जल चढ़ाना है एंड यू डोंट नो सनराइज का टाइम क्या होता है, सो दैट इज़ द थिंग। सो आई थिंक डिसिप्लिन इज़ very important for everyone and for any remedy in astrology also उसका वो जो perks है या फिर उसका जो what do you say कि उसका actually उसके बैक में क्या चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन है। एब्सोल्युटली नहीं, आई टोटली अग्री क्योंकि यू नो आई फॉलो सदगुरु एंड आप बहुत साल पहले जब मैं यू नो वेरी आई थिंक अबाउट 10 years ago जब मैंने सदगुरु के बारे में सुना ही, तो आई थिंक वन ऑफ द वीडियोज़ ही मैंशन दैट आप बाहर निकल के यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द मून साइकिल्स, स्पेशली पीपल हु आर यू नो जिनको इमोशंस तंग करते हैं और जो यू नो मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, एंड दैट पॉइंट आई वाज गोइंग थ्रू। तो एंड एक्चुअली मैं मुझे नहीं पता होता था यार कि आज क्या मून कहाँ पे है, कौन यू नो कि आजकल मून कब है, अमावस्या कब है, आई डिडंट नो एनीथिंग। एंड ऑल ही सेड वाज कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द मून साइकिल्स यू विल नो कि फुल मून और अमावस्या आपके इमोशंस को कितना हाइलाइट कर देती है। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द मून साइकिल्स एंड मैंने काफ़ी टाइम तक आई थिंक 3-4 years गुड मैंने पूर्णमासी पे फास्ट रखा, फुल मून्स पे, एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। In the end, I think it's about self-awareness. Of course. It's about doing something and it's about doing everything with awareness. आंखें बंद करके सो लाइक हम जागे तो हुए हैं बट लिटरली हम सो के काम कर रहे हैं, यू नो हम ऑटोमेट मोड पे काम कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस नहीं है। खा भी रहे तो टीवी देखते देखते या बीज देखते देखते खा रहे, वी डोंट इवन नो हमारा पेट कब भरा, एंड यू नो इम्पल्स ईटिंग कर रहे हैं, वी डोंट नो हमें ये चीज़ सूट करती है। या जैसे मैं आपको थोड़ा टाइम पहले बता रही थी कि आयरन टैबलेट्स थी, तो मुझे नहीं आई वो कि इन्हीं से मुझे प्रॉब्लम हुई है। मोस्टली लोगों को पता भी नहीं चलेगा यार कि क्यों हमें इनसे प्रॉब्लम हुई, यू नो अभी सब ठीक चल रहा हो और एकदम से ये। तो एक अवेयरनेस अपने बारे में बहुत ज़रूरी है इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक योर रिलेशनशिप, योर अबाउट योर सेल्फ, योर मनी मैटर्स। जो मैं अभी ये नहीं सुन रही थी बहुत देर जब आप सब राशियों का बता रहे थे, अवेयरनेस इन द एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस। आप जाओ, आप अपना चार्ट पता करो, ओके दिस इज़ इट, मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एंड आई थिंक एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। एक साथ कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में पैदा हुए हो, लाइक आपका क्या डोमिनेंट है आपकी बॉडी में, क्योंकि वात पित्त कफ से हम सब बने हैं, तो वो भी आपको बता देती है कि आपकी बॉडी में क्या खाना चाहिए आपको। तो you know, so just have to be aware. So having a chart is not an issue, getting obsessed with it is a issue, just like getting obsessed with anything। It is actually obsession तो is not good for anything, like obsession तो आप किसी भी चीज़ का, even obviously with charts also, and you can't say कि हम हर planet की रेमेडी कर लेते हैं तो सब कुछ तो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट कि वो लाइंस ऊपर नीचे जब तक नहीं जाएंगी, you know, that's not life. That's not life. Exactly. That's the end of life. 100%. Thank you so much, Ishita. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। No problem. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। And but I have to say कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, and you know we will do the different topic. बस अभी आप केतु राहु के बारे में बता रहे थे, because astrology is such a vast affairs कि इसका कोई एंड नहीं हो सकता। So we can do PhD on astrology. That's true, and we have so much to discuss. You know, it's such a vast thing, and I think इतना time तो definitely कम पड़ा। For sure. Thank you so much. I hope you enjoyed the conversation. Yes, I did. Thank you. Thank you. I hope you all enjoyed the conversation. So please don't forget to subscribe the channel because ये videos बनाने में काफ़ी effort लगता है, time लगता है, and you know, so I would really appreciate if you all can subscribe the channel, and thank you for watching. See you next time.